Okay, I hope my screen is clearly visible to you, and my audio is also audible, right? Okay, ठीक है, चलो. Okay, thanks. So, I think we have solved this problem. This one, the Salil's age and the Sangram's age, right? So, just in case if you students are forgetting which chapter we are learning about, so this is linear equations in two variables. This is the chapter, and we are solving word problems, right? So, इसमें से हमने कुछ एक दो क्वेश्चंस लिए थे सॉल्व क्वेश्चंस में से एंड एक दो क्वेश्चंस बाकी है एंड आफ्टर दैट वी हैव वन प्रैक्टिस सेट राइट so let us see which question is remaining and how can we solve that. Okay, so if a two digit number, I think we are done with this. Okay, so let's discuss this question. All right, so in this question, example 4, the population of certain town was, sir, can you zoom the screen? Yeah, surely I will. I hope it is good now. Is it? ठीक है अभी? All right. चलो ठीक है. So, first of all, we have to read the question and then we have to form equations and then we can solve those, right? So, first of all, I will read the question. The population of certain town was 50,000. In a year, male population was increased by 5% and female population was increased by 3%. So now the population become 52,020. Then what was the number of males and females in the previous year? So abhi what we have to do students, we have to form two equations, मतलब दो equations हमें चाहिए in two variables, right? So that we can solve and we can get the values. So पहला equation क्या बन सकता है हमारा? Can anybody sense the first equation? See, population of a certain town is 50,000. So population यानी कि क्या? इसमें हम segregate नहीं करेंगे कि like adults, kids or elder people, senior citizens. We will not segregate like that. हम उस तरीके से divide नहीं करेंगे. We will just consider males and females. Okay, so एक शहर में या फिर एक टाउन में अगर पॉपुलेशन 50,000 है, so that means कुछ मेल्स और कुछ फीमेल्स बना के इट विल बी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50,000, राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पे कादम्बरी ने लिखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50,000. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ सेकेंड इक्वेशन में क्या, अभी अभी सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करना बहुत जरूरी है बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन तो आसानी से हो जाता है, सेकेंड इक्वेशन में हमें कभी कभी दिक्कत आती है, राइट? सो सी, male population was increased by 5% and female population was increased by 3%. तो अभी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमने 50,000 लिखा है, तो इसमें से हमें पहले ही मान लेना है कि लेट अस सपोज मेल पॉपुलेशन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, x यूज कर रहे हैं, और फीमेल पॉपुलेशन के लिए हम y यूज कर रहे हैं, ठीक है? सो पहला जो मेरा इक्वेशन था वो मैंने लिख दिया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50,000, ये मैंने लिख दिया है. ओके, सो इज देयर सम, ओके, 5x by 100 plus 3y by 100 is equals to second equation. Very good. So कैसे आया ये इक्वेशन, कैसे आया ये पहले हम देखते हैं. Now see, 5% इंक्रीज इन मेल पॉपुलेशन, मतलब x में कितना इंक्रीज हुआ है? 5%. 5%, सी, 5% सेंट यानी कि 100. तो कैसे लिखना है? सी, ये हमारा मेल पॉपुलेशन है जिसमें की बढ़ोतरी आई है 5% की. सी, 5% प्लस अभी y में कितनी बढ़ोतरी आई है या फिर कितना बढ़ा है पॉपुलेशन? 3%, राइट? इज इक्वल्स टू, अभी 5% मेल बढ़ गए और 3% फीमेल्स बढ़ गई, तो टोटल पॉपुलेशन जो है वो बन गई
एंड 20। ओके, सो इस तरीके से हमारा सेकेंड इक्वेशन भी बन गया। अभी इन दोनों को सॉल्व करना है एंड यू विल गेट values of x and y. So that is nothing but the population of or the number of males and females in the previous year. राइट, सो इस तरीके से सॉल्व करना है। सी यहाँ पे एक्स वाई लिखेंगे, यहाँ पे 5/3 रहेगा, यहाँ पे 3/, यहाँ पे 5/100 रहेगा, यहाँ पे 3/100 रहेगा। So again, this equation we have to solve. Okay, 5x plus 3x is equals to 520 करेक्ट। सो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। So this is how we can solve, and we will get a number of males, that is value of x, and number of females, that is value of y. So ये दो चीजें हमें find out करनी है। Now we have one very interesting activity. Sorry, but I have to zoom out this. Okay. So इस activity में हमें क्या करना है? See, बीच में एक हमें क्वेश्चन टाइप दिया है, एंड यहाँ पे ये जो ब्लैंक स्पेसेस हमें दिख रहे हैं ना, ये वाला और ये, तो इसमें हमें इक्वेशंस फॉर्म करके उनको लिखना है। ऑलराइट, सो सी, नाउ क्वेश्चन क्या है? आई एम अ रेक्टेंगल, माय लेंथ इज x यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज y यूनिट्स। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं। सो ये जो रेक्टेंगल है, लेट अस सपोज दिस इज आवर रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल में जो हमारी लेंथ है, इट इज आई थिंक x, राइट, एंड जो ब्रेड्थ है वो है y। ठीक है, सो ये हमारा रेक्टेंगल है, जो क्वेश्चन में हमको दिया है मैंने वो इसे विजुअलाइज कर दिया, या फिर यहाँ पे मैंने उसे ड्रॉ कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फॉर्म इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सो सम ऑफ, अभी पहला वाला देखते हैं हम। ओके, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। सी, पहला वाला क्या है? सम ऑफ माय लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 36। सो हु कैन राइट द फर्स्ट क्वेश्चन? Who can write the first question? Sum of my length and breadth is 36. कादम्बरी, यू आर मेकिंग अ लिटिल मिस्टेक। यहाँ पे हमें पेरीमीटर नहीं पूछा है, राइट? अगर पेरीमीटर पूछते तो देन वी वुड हैव राइट 2 into x plus y is equals to 36। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या बोला है? सम ऑफ माई लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 36। मतलब हमें सिर्फ यहाँ पे x प्लस y करना है। ओके, अगर पेरीमीटर बोला होता, देन वी कुड हैव राइट रिटन इट एज 2x plus 2y is equals to 36। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, या फिर सीखने में इंटरेस्ट नहीं है? एवरीबडी हैज टेकन देयर नोटबुक विथ यू। आपके पास आपका नोटबुक है, आप सब लोग लिख रहे हो जो मैं लिख के दे रहा हूँ। आयुष, वेदांत, डू यू हैव योर नोटबुक एंड आर यू राइटिंग? Yes, great. So keep responding in the chat box, right? Still no response from Ayush. All right. So पहला equation अभी बन गया. Okay, Shailesh Varpurkar is, I think, new student who has joined. Welcome, Shailesh. We have just started our class. You have to put your attendance in the chat box. तुम्हारा नाम यहाँ पे chat box में लिखो. ओके, और जो चल रहा है मैं उसका थोड़ा सा आपको रिवीजन करके बताता हूँ। ओके शैलेश, कैन यू हियर मी शैलेश? Yes, sir. ऑल राइट, फाइन। सो ओके, so Shailesh, my request to you will be please join on the time next time. Okay, ठीक है। So हम पढ़ रहे हैं, all right, you can keep your mic off whenever needed. I will ask you to turn on your mic and then you can turn on your mic. All right, चलो ठीक है। So we were learning linear equations in two variables। ठीक है, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, आयुष, कादम्बरी, वेदांत एंड शैलेश। सो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हम ये जो चार्ट है, इस चार्ट में हमें बीच में क्वेश्चन दिया है कि आई एम अ रेक्टेंगल, माय लेंथ इज x यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज y यूनिट्स। तो मैंने यहाँ पे वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है विथ लेंथ x एंड ब्रेड्थ y। सो पहला जो इक्वेशन हम फॉर्म करने वाले थे, सो इट वाज दिस, सम ऑफ माय लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 36। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 आएगा। सो ये पहला इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड इक्वेशन, लेट्स गो क्लॉकवाइज। तो मतलब सेकंड इक्वेशन
इसे पकड़ लेते हैं हम। माई ब्रेड्थ इज 5/7 टाइम्स ऑफ द लेंथ. Okay, so do you have any answer? Kadambari has an answer that is 5 into 5/7 is equals to y. That means my breadth is 5/7 times of the length. So किसी और के पास कोई आंसर है अलग? कादम्बरी ने जो लिखा है उससे अलग कुछ आंसर है आपके पास? नहीं, यही आंसर सही है। लेंथ क्या है? लेंथ है x, राइट? और कितना बड़ा है, या फिर लेंथ का मेजर क्या है? दैट इज, या इट इज करेक्ट, या कादम्बरी यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. दैट इज x into 5/7 is equals to y, or 5x/7 is equals to y. Both are correct, both are same actually, right? So जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है वो रहेगा 5x/7 is equals to y. So this is our second equation. अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लेना. ओके, आई एम टेकिंग इट एज कि आपको ये समझ में आ गया है. चलो, तो थर्ड इक्वेशन. अभी कादम्बरी ने दो इक्वेशंस फॉर्म कर दिए. नाउ देयर आर थ्री मोर स्टूडेंट्स. शैलेश इज देयर, आयुष इज देयर, वेदांत इज देयर. सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेट अस सी हु कम्स फर्स्ट. आप तीनों में से कौन पहले तीसरे का आंसर देता है. ओके, सो मैं तीसरा जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ. इट इज वेरी वेरी इजी. दैट इज the difference between my length and breadth is 6 units. So it is the simplest one, isn't it? It is the simplest question. इसको आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है. व्हाट इज स्क्वायर? व्हाट इज स्क्वायर? हमें तीसरा इक्वेशन लिखना है वेदांत. ओके, सो सी, the difference between my length and breadth is 6 units. तो आपका जो आंसर है वो चैट बॉक्स में लिखो. अगर आपको आंसर नहीं आता है सो यू हैव टू राइट नो, आई डोंट नो आंसर. चलो बताओ. इट इज वेरी सिंपल. अगर ये नहीं आता है सो दैट मीन्स आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स समझ में नहीं आया है. ओके, सो इट इज सिंपलेस्ट वन. The difference between my length and breadth is 6. Yeah, Kadambari, you can give. All right, but hold on for your answer. Okay, so Vedant has given answer that is L minus P is equals to 6, which is absolutely correct. But Vedant, we are not using L and B for length and breadth. So हम length के लिए क्या use कर रहे हैं? Length के लिए क्या use कर रहे हैं हम? We are using x for length. Yeah, now you got it. See, Ayush ne bhi likha. And yeah, so we are using x and y, so that's why we have to write it as x minus y is equals to 6. X minus y is equals to 6. I hope it is understandable for everyone. I hope Shailesh you also understood this. Okay, if yes, you can confirm in the chat box. Now let's come to the fourth one. ओके, सो अभी सबसे पहले आंसर किसने दिया यहाँ पे? वेदांत ने आंसर दिया. कादम्बरी आंसर ऑलरेडी दे चुकी है. सो ये दो स्टूडेंट छोड़ के अभी बचा कौन? आयुष एंड शैलेश. सो आप दोनों में से मुझे बताना है चौथे का आंसर. अभी चौथा थोड़ा सा हार्ड है. ओके, सो if the breadth is subtracted from twice the length, the answer is 27. Oh no, it's not hard. ये तो simple ही है. See, if the breadth is subtracted, now only Ayush and Shailesh will answer in the chat box. Okay, hold on, Kadambari and Vedant. If the breadth is subtracted from twice the length, the answer is 27. Okay, I think Shailesh left. No issues. Okay, Ayush, you are there only. So it's your turn. If you cannot, uh, Kadambari and Vedant, you can give the answer. Perfect. Perfect. It is 2x minus y is equals to 27. Twice of length means 2x, and we have to subtract breadth from that. That means 2x minus y is equals to 27.
सो जो हमारा ये क्वेश्चन इक्वेशन बनेगा दैट इज 2x minus y is equals to 27. Perfect. Okay. Now let us solve practice set 5.2. So practice set 5.2 में जो पहला एग्जांपल हमारा है, first of all I will read that and then we will try to form equations based on this. Okay. Okay. See. Now this one I am reading this one. Okay. In an envelope there are some 5 rupee notes and some 10 rupee notes. Total amount of these notes is 350 rupees. Number of 5 rupee notes are less by 10 than the number of 10 rupee notes. Then find the number of 5 then find the number of 5 rupee and 10 rupee notes. Okay. So for an instance, let us suppose हमारे पास 5 रुपए के कितने नोट्स हैं? There are x notes of 5 rupees. ओके, x नोट्स ऑफ 5 रुपीज और 10 रुपए के कितने नोट्स है स्टूडेंट्स? 10 रुपए के मान लो वी हैव y नोट्स. ठीक है. सो सी, in an envelope there are some 5 rupee notes and some 10 rupee notes. Total amount of these notes together is 350 rupees. So can you form it? Okay, here is the trick. यहाँ पे देखो, देखो कादम्बरी, you have to understand this question. It is not like other questions. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. कैसे, मैं बताता हूँ. मान लो कि मेरे पास 5 रुपए का एक नोट है और 10 रुपए का एक नोट है. राइट. तो मेरे पास कितने रुपए हुए? 15 रुपए हुए. राइट. राइट और रॉन्ग? या, नाउ यू गॉट इट राइट. नाउ यू गॉट इट राइट. राइट. सो इट शुड बी, बाकी सबको मिला, मतलब समझ में आया कि गलती क्या हुई थी. कि यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 350 नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? बिकॉज x, मतलब एक जो x है वो x, 1x इज इक्वल्स टू 5 रुपीज नोट. राइट. y इज इक्वल्स टू 10 रुपीज नोट. सो वी हैव, देर आर सम 5 रुपीज नोट्स. तो सम मतलब कितना है हमें पता नहीं. सो उसे हमने x मान लिया. सो x इंटू 5 प्लस 10 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 350. राइट. नाउ नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स, मतलब जो हमारा x है, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10 देन द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स. नाउ टेल मी व्हाट कैन बी द फॉर्मूला. कैसे फॉर्मूला आप फॉर्म करोगे? सेकंड वाला, पहला तो मिल गया. पहला इज 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 350. करेक्ट. नाउ सेकंड वन, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स. नाउ स्टार्ट राइटिंग. आप अपने नोटबुक पे लिखना शुरू कर दो. नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स कितने हैं स्टूडेंट्स? डू वी नो दैट? नो. एक्स. राइट. एक्स. आर, अभी देखो 5 रुपी नोट्स आर मतलब एक्स इज इक्वल्स टू, राइट, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर इज इक्वल्स टू लेस बाय 10 देन द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स. तो 10 रुपी के नोट्स कितने हैं? वाई है. वाई है. सो वाई में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो हमें 5 रुपीज नोट्स मिलेंगे. इट विल बी 10. मतलब x इज इक्वल्स टू y माइनस 10. ये हमारा फॉर्मूला बन गया. राइट. ये वाला, ये जो है हमारा सेकंड फॉर्मूला है. Now, if you solve this by substitution method, we can get the answer. So for that, let me just get a new page, blank page, and then we will solve it. Okay. So just give me a few seconds, student. Okay, I think the blank screen is visible now, right? Perfect. So यहाँ पे पहला फॉर्मूला क्या था हमारा? 5x plus how much? 5x plus 10y is equals to 350. ये हमारा पहला था. नाउ सेकेंड क्या बना? x इज इक्वल्स टू y माइनस 10. सो अभी हम सब्सटीट्यूशन मेथड से अगर यहाँ पे x की जगह पे y माइनस 10 रख देते हैं. सो मान लो कि 5 इंटू वाई माइनस 10 प्लस
10y is equals to 350, right? So 5y minus 50 plus 10y is equals to 350. सो दैट विल रिजल्ट इनटू, सो देखो यहाँ पे जो -50 है ये यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड 5y प्लस 10y इज 15y is equals to 350 plus 50 is 400, and 15, sorry, it should not be 15, it is y is equals to 400 by 15. Okay, so are you getting the answer? Try to calculate what is y is equals to. Try to get the answer, students. Try to solve it and let me know if there are any mistakes or discrepancies if you find it. Sir, for yeah, it is coming in the point, right? Yeah, perfect. So it is 26.666. मतलब कि नोट्स पॉइंट में तो हो नहीं सकते, हम ऐसे नहीं कह सकते ना कि मेरे पास 26.5 नोट्स है. इट शुड बी आइदर 26 और 27, राइट? सो व्हाट इज आवर कंक्लूजन? यहाँ पे कंक्लूजन हमारा ये है कि देर इज सम मिस्टेक इन द एग्जाम्पल. जो हमारा एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, सी शेयर दिस टैब, मैं अभी ये टाइप करता हूँ ना, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10 देन द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स. तो इसमें कुछ ना कुछ तो करेक्शन है, तभी जाके हमारा जो आंसर है वो गलत आ रहा है फॉर दिस एग्जाम्पल. ठीक है, मतलब अगर थियोरटिकली हम लिखेंगे सो इट इज पॉसिबल कि मतलब 26.66 आ रहा है तो वो करेक्ट है. लेकिन जब हम प्रैक्टिकल बातें करते हैं सो दैट दिस दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग क्वेश्चन. ठीक है, सो नाउ विल मेक वन चेंज. विल मेक वन चेंज. मान लो कि नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10 देन नंबर ऑफ ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स. क्या बोला मैंने? ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स. सो इन दिस केस व्हाट शुड बी द आंसर? नाउ चेक, अभी चेक करो. सी हमारा फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल्स टू, मैं सॉल्व करके बताता हूँ. ठीक है, सी यहाँ पे x इज इक्वल्स टू वाई माइनस 10 था. मतलब कि हमारे जो 5 रुपी के नोट्स है वो 10 रुपी के नोट्स में से अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें उसका नंबर मिल जाएगा. आंसर इज 30 notes of 5 and 20 notes of 10 in a book. Okay, we'll try to find out the answer. All right, now see यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो x लिखा है ना, सॉरी y लिखा है ना, तो y की जगह पे मैं 2y लिख देता हूँ. मतलब ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स माइनस 10. सो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे 2 आ गया तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी 10 rather than 5, right? So 5 into 10 is 10y minus 50 plus 10y is equals to 350. मतलब कि 20y is equals to 400 and y is equals to 400 by 20. So y is equals to 20. Is it correct or wrong? Yeah. Y is what? Perfect, right? So y अगर 20 है तो x कितना आएगा? x आएगा obviously 30.
बराबर ना। सी y की जो वैल्यू है आप यहाँ पे रख दो। सो x इज इक्वल्स टू y इज 20 इंटू 2 is 40 माइनस 10, x इज इक्वल्स टू 30। मतलब 5 रुपीज के 30 नोट्स है और 10 रुपीज के 20 नोट्स है। डिड यू गॉट दिस? तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, क्वेश्चन में चेंज करना पड़ा। क्वेश्चन इज मे बी इट मे बी अ प्रिंट मिस्टेक। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? चलो ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। Now let's go to the second question. The denominator of a fraction is 1 less. Okay, let me just erase this thing. Okay, so the denominator of a fraction is 1 less than twice its numerator if 1 is added to numerator and denominator respectively. The ratio of numerator to denominator is 3:5. Find the fraction. So यहाँ पे first of all we have to consider that fraction as x by y. मान लो कि वो जो fraction है वो है x by y, but 5 rupee note is less than the 10 rupee notes by okay, but 5 rupee note is just a second. There are some total amount of 5 rupee notes are less by 10 than the number of 10 rupee notes. Yeah, actually, you're right, Kadambari. But since there is a print mistake in this question itself, the answer is coming like that. Are you getting my point? This question is wrong. So इसका जो आंसर है वो हमें मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है, दैट इज द बेस्ट थिंग। ओके, सो वो प्रैक्टिकली तो क्वेश्चन गलत ही है, लेकिन टू गेट द वैल्यू वी हैव मेड चेंज। समझ रहे हो ना? वी हैव मेड द चेंज। ओके, या, थैंक्स। चलो, सो सेकंड वन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1। ठीक है, तो हमने ये फ्रैक्शन क्या मान लिया? फ्रैक्शन मान लिया x बाय y। सो यहाँ पे डिनोमिनेटर है y, numerator है x. So denominator of a fraction is 1 less than twice of its numerator. Write down the first equation. Denominator of a fraction is, denominator क्या है? y is equal to, y is equal to less 1 less than twice its numerator. So can you write the equation? Write down students. देखो, समझ में नहीं आ रहा है क्या? Denominator is y which is 1 less than twice its numerator. Numerator क्या है? x है. So twice of numerator क्या रहेगा? 2x रहेगा. And 1 less than मतलब 1 अगर subtract करोगे तो ये मिल जाएगा हमें. y is equals to 2x minus 1. ये पहला इक्वेशन हो गया हमारा. Now if 1 is added to numerator and denominator respectively, the ratio of the numerator to denominator is 3:5. अभी ये लिखने की कोशिश करो. See, 1 is being added to numerator as well as to denominator. x plus 1 by y plus 1 is equals to, जब हम इसको ऐड करते हैं न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, रेशो बन जाता है 3:5, राइट? सो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं ब्लैंक पेज में. सो अलाउ मी फ्यू सेकंड्स सो दैट आई विल शेयर दिस टैब. सी, हमारा पहला इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन था y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, और सेकंड इक्वेशन जो हमारा बना वो बना x plus 1 बाय y plus 1 इज इक्वल्स टू 3:5. स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया? दोनों इक्वेशंस कैसे फॉर्म हुए ये समझ में आया सब कुछ? प्लीज टेल मी एवरीवन. ओके, 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 फाइन, ठीक है. सो दोनों
इक्वेशन कैसे आए ये आपको समझ में आ गया। नाउ अगेन वी हैव टू यूज सब्सटीट्यूशन, लेकिन ये जो इक्वेशन ये दिख रहा है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। सो 5 इंटू एक्स प्लस वन बन जाएगा 3 इंटू वाई प्लस वन। परफेक्ट। नाउ 5x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3, नॉट 1, 3y प्लस 3। तो y की जगह पे ये वैल्यू रख दो, है ना। सो अभी ये जो 3 है मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 2। 5 में से 3 चला गया और 3 एज इट इज y की जगह पे मैं लिखूंगा 2x माइनस 1। गुड। नाउ 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 into 2x is 6x, 3 into minus 1 is minus 3। अब ये जो माइनस 3 है ये यहाँ पे चला जाए या फिर ये यहाँ पे चला जाए, वन एंड द सेम, ठीक है। सो सी ये यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इसे। सो 2 प्लस 3 बन जाएगा 5, 6x एज इट इज, 6x और ये 5x जो है वो यहाँ पे आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू कितना आया स्टूडेंट्स? x इज इक्वल्स टू आया 5, राइट। x इज इक्वल्स टू अगर 5 आता है, सो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा? अभी यहाँ पे रख दो। y is equals to 5 into 2 is 10 minus 1, that is y is equals to 9, right? So हमारा fraction क्या था? Our fraction is x by y is equals to 5 by 9. Perfect. Is this our fraction? Yeah. So we will cross verify as well. पहला सेंटेंस क्या था कि जो हमारा denominator of a fraction is one less than the twice of its numerator. So twice of numerator होगा 10 और 10 में से एक निकालोगे तो मिल जाएगा 9, जो कि हमारा डिनोमिनेटर है। मतलब पहला जो सेंटेंस है वो हमारा सेटिस्फाई हो गया। सेकंड सेंटेंस क्या था? सेकंड सेंटेंस था कि इफ यू ऐड वन इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, सो इन दैट केस आपका जो फ्रैक्शन का वैल्यू है वो बन जाएगा 3:5। कैसे बनता है देखो, न्यूमरेटर में एक ऐड कर दिया मतलब 5 प्लस 1 इज 6, डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दिया मतलब y प्लस 1 इज और 9 प्लस 1 इज 10। सो 6s to 10 मतलब 6 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या हुआ इसका मतलब 6 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू नथिंग बट 3/5 ओनली। दोनों 6 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 10 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, सो इट इज अगेन बिकमिंग 3/5। मतलब हमारे जो दोनों कंडीशंस थे वो सेटिस्फाई हो रहे हैं इस वैल्यू से। सो वी कैन कंसीडर x is equals to 5 and y is equals to 9 are the correct values. I hope it is pretty clear, right? Chalo. So let's move to the third question. The sum of ages of Priyanka and Deepika is 34 years. Priyanka is elder to Deepika by 6 years. Then find their today's age. So आपको यहाँ पे तीन चीजें लिखनी है, सॉरी चार चीजें लिखनी है। पहले तो आपको पहला इक्वेशन लिखना है। यू हैव टू डू इट, आई वॉन्ट, मैं नहीं करूंगा। पहले तो आपको यहाँ पे पहला इक्वेशन लिखना है। Then you have to second equation, write second equation, then Priyanka's age and Deepika's age. So you have to write these four things. So पहला क्वेश्चन इक्वेशन किसी ने लिखा, क्या लिख दिया? ओके, कादम्बरी has written first equation, that is x plus y is equals to 34। मतलब उन दोनों के सम उन दोनों के एजेस की जो सम है वो 34 है। परफेक्ट। नाउ सेकंड इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Okay, I will give you a hint. Priyanka is elder to Deepika by 6 years. Perfect. If you are considering Priyanka's age as X and Deepika's age as Y, so your assumption is correct. Perfect. Okay, now hold on, Kadambari. Vedant and Ayush, find out the value of X and Y. बताओ, चलो x की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो, बताओ मुझे। सॉल्व ऑन योर नोटबुक। आई होप यू आर नॉट हैविंग लंच, सॉरी डिनर। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, सम ऑफ एजेस ऑफ, ओके, प्रियंका एंड दीपिका का जो वैल्यू है, एज है, मुझे बताओ।
Okay, Ayush has got answer x is equals to 20. We will see is it right or wrong. Okay, x is equals to 20. Perfect. I hope you are not giving answers from textbook. And y is equals to 14, right? ओके, ठीक है। सो अभी हमें इसे क्रॉस वेरीफाई करना है। कैन यू डू दैट? मतलब आप में से किसी को है इच्छा कि मुझे क्रॉस वेरीफाई करके दिखाए कि सर दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क, मतलब एक्सप्लेन करना है बाय टर्निंग ऑन योर माइक। एनीवन वांट टू वॉलंटियर कि ये जो हमारे वैल्यूज है x इज इक्वल्स टू 20 एंड y इज इक्वल्स टू 14, ये वैल्यूज सही वैल्यूज है, ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करते हैं। कैसे? मैंने जैसे बताया ना आपको पहले कि फ्रैक्शन, मतलब पहला जो मैंने बताया ना एग्जांपल कि इसमें डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, इस तरीके से बताने का है। एनीवन? वेरी सिंपल, ठीक है, अभी नहीं बताते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको ध्यान में रखना कि आपको इस तरीके से बताना है। ओके, सो माय फर्स्ट सेंटेंस इज, मेरा जो पहला सेंटेंस है सवाल में, दैट इज सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 14 है। सो अगर मैं x इज इक्वल्स टू 20 एंड y इज इक्वल्स टू 14 को ऐड करता हूं या फिर करती हूं, सो उसका सम आता है 34। मतलब कि मेरा पहला सेंटेंस सेटिस्फाई हो गया। नाउ सेकंड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, प्रियंका इज ओल्डर टू दीपिका बाय 6। ठीक है, सो मान लीजिए कि प्रियंका का एज 20 है, तो इस हिसाब से या फिर हमने जो कैलकुलेट किया है उस हिसाब से दीपिका का एज है 14। मतलब दीपिका प्रियंका से 6 साल छोटी है, जो कि दिखता भी है। मतलब 20 में और 16, 20 में और 14 में कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। तो हमारा सेकंड जो सेंटेंस था वो भी सेटिस्फाई हो गया। सो यू नीड टू हैव दिस क्लैरिटी। समझ रहे हो ना कि सिर्फ x और y की वैल्यूज निकाल के नहीं छोड़ना है, यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई दैट कि जो एक्चुअल वर्ड प्रॉब्लम है वो सेटिस्फाई हो रहा है क्या। अगर ये नहीं क्रॉस वेरीफाई करोगे तो जो पहला हमारा एग्जाम्पल था ना, जिसमें 5 रुपीज नोट 10 रुपीज नोट था, तो उसका आंसर आप एग्जाम में x इज इक्वल्स टू 26.333 लिख के आओगे, विच इज गोइंग टू बी रॉन्ग। ठीक है, आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, देन यू हैव टू क्रॉस वेरीफाई, देन यू विल गेट टू नो कि वेदर माई आंसर इज राइट और रॉन्ग। अगर कुछ गलती लगती है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ lions, the total number of lions and peacock in a certain zoo is 50. Just a second, students, what kind of a notification is this? All right, it's nothing important. Fine. So, oh, somebody has written first sentence, first equation as well. Perfect. So, total number of lions and peacocks in a certain zoo are 50. The total number of their legs is 140. Then find the number of lions and peacocks in the zoo. So this is very interesting question. Second वाला equation form करके बताइए आप लोग, तो मैं मानूं। The total number of their legs, मतलब जो उनकी टांगे आहे, जे त्यांचे पाय आहेत कोणाचे? पिकॉकचे म्हणजे मोराचे, आणि लायन्स म्हणजे सिंहाचे. सो जर तुम्ही सिंहाला x मानले आणि मोराला y मानलेला आहे, म्हणजे x प्लस वाय इज इक्वल्स टू जर 50 म्हणताय, तर एक्स इंटू 4 म्हणजे सिंहाला 4 पाय असतात आणि पीकॉकला 2 पाय असतात, प्रोव्हायडेड की त्या सगळ्यांपैकी एखादा एखादा सिंह किंवा जो पीकॉक आहे, मोर आहे, तो लंगडा नाहीये. ओके, सो जर लंगडा असेल तर त्याला 3ही पाय असू शकतात, बट दॅट इज नॉट द केस. आपल्याला तसं सांगितलं नाही आहे, तर आपल्याला तसं कन्सिडर पण नाही करायचं. ओके, सो आपण पकडून चालतोय की सिंहाला किती पाय आहेत? 4 पाय आहेत. मोराला किती पाय आहेत? 2 पाय आहेत. सो 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 140. परफेक्ट. नाऊ आता नेक्स्ट स्टेप मला ही सांगा की हे इक्वेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी हे जे दोन इक्वेशन्स आहेत, x प्लस वाय इज इक्वल्स टू 50 अँड 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 140, हे दोन इक्वेशन सॉल्व्ह करण्यासाठी, टू सॉल्व्ह दीज टू इक्वेशन्स, विच मेथड यू आर गोइंग टू यूज?
whether it is elimination method or whether it is substitution method. Which method is useful or which method is feasible? Okay, somebody has given 25 will be the answer. So then find the number of lions and peacocks in the zoo. Find the number of lions and peacocks in the zoo. I think there is there any mistake? The find the number of lions and peacocks in the zoo. Okay, okay, we will see that. We'll see about the answer. उस मुझे लगता है इसमें भी कुछ गलती है मे बी. हम्म 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 हम्म. Okay, substitution method. Kadambari says it is substitution method, but I prefer कि इसमें uh, we will be the elimination method will be feasible. कैसे देखते हैं चलो. So जैसे कि कादम्बरी ने लिखा है, मैं यहाँ पे पहला इक्वेशन लिखता हूँ, that is sorry for this extra dash, x plus y is equals to 50 है हमारा, राइट. सो ये हमारा पहला इक्वेशन है. सेकंड इक्वेशन जो है हमारा, दैट इज 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 140 है. सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा इक्वेशन बनता है 2x plus 2y is equals to 100. So इसे मैं नाम दूंगा थर्ड इक्वेशन. एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट these two, now see, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद में साइन चेंज विल बी देयर. सो 2y gets cancelled. 4x minus 2x is 2x, and 140 minus 100 is 40 itself. So x is equals to 20. So what is this x? X is number of lions. Lions are 20 और पीकॉक्स आर 20. बताओ अभी लायंस 20 है या फिर पीकॉक 20 है? इसमें भी गलती हो सकती है. या इट हैज टू बी लायंस बिकॉज एक्स की वैल्यू हमने लायन मानी है. क्यों एक्स की वैल्यू ही लायन क्यों है स्टूडेंट्स, बताना जरा मुझे. वाई इट कैन नॉट बी वाई? बिकॉज हमने, या पीकॉक इज इक्वल्स टू 30. परफेक्ट, मतलब दोनों मिला के 50 है. तो अगर लायंस 20 है, सो एब्सोल्युटली और ऑब्वियसली जो पीकॉक्स है वो 30 रहेंगे. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने यहाँ पे लायंस की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 20 आई, तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि लायंस ही 20 है, पीकॉक्स क्यों नहीं? बिकॉज वी हैव मल्टीप्लाइड x बाय 4 इन इक्वेशन 2. मतलब हमने ये मान के चला है कि x नाम का जो कोई भी जानवर है उसके कितने पैर है? 4 पैर है. वी हैव यूज्ड दैट in the second equation, right? We have taken that assumption. So that's why x is nothing but number of lions, and y is what? Y is number of peacocks. So lions are 20 and peacocks are 30. I hope you get this right. Okay, so let's discuss the next question. Okay, so how many questions are there? One, two, three, four, five. Okay, there are too many questions, no issues. All right, so let me just read the fifth question, and then you will try to form the equations and you will solve those equations at home. Okay, so we'll just form the equations here. Solve हमें बाद में करना है. Now see, Sanjay gets fixed monthly salary or monthly income. Every year there is a certain increment in his salary. After 4 years his monthly salary was rs 4500, and after 10 years his monthly salary becomes 5400 rupees. Then find his original salary and yearly increment. Now even though it looks a bit difficult, but it is not. सो सी, यहाँ पे हमें assumption का करना है थोड़ा सा. आप मतलब ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक एग्जांपल आपको लग रहा है, राइट? सो उसकी एक फिक्स्ड सैलरी है, संजय की एक फिक्स्ड सैलरी है. सो फिक्स्ड सैलरी को हम मानेंगे एक्स. ठीक है, हम उसे एक्स मानेंगे. सो ही इज गेटिंग इंक्रीमेंट एवरी मंथ, मतलब सॉरी, एवरी ईयर, not every month. Okay, it is increment is how much? Increment is, let us suppose y. Every year there is a certain increment in his salary, so that increment is y. ठीक है. So फिक्स सैलरी कितनी है स्टूडेंट्स? फिक्स सैलरी है x और इंक्रीमेंट है y. सो पहले ईयर के लिए उसकी सैलरी कितनी रहेगी जरा मुझे बताना.
what will be his salary for first year, not in numbers में नहीं बताना है आपने मुझे, you can tell me in equation. x plus y रहेगी, perfect, मतलब उसकी इनकम, फिक्स्ड इनकम प्लस उसकी इंक्रीमेंट, राइट. सो दूसरे साल के लिए उसकी सैलरी कितनी रहेगी, दूसरे साल के लिए उसकी सैलरी कितनी रहेगी, फिक्स्ड इनकम तो फिक्स ही है, एक्स इज गोइंग टू बी देयर, एक्स तो एक्स ही रहेगा, लेकिन इंक्रीमेंट उसे कितनी बार मिला, दो बार मिला, मतलब एक्स प्लस टू वाई हुआ, राइट. तीसरे 3 साल बाद कितनी उसकी इनकम रहेगी, 3 साल बाद कितनी इनकम रहेगी, एक्स प्लस थ्री वाई. आफ्टर 4 years his monthly salary was 4500. अभी हमें पहला इक्वेशन मिल जाएगा. आर यू गेटिंग दिस, सी, या, नाउ यू गॉट द पॉइंट, समझ रहे हो. हम, मैंने ये सब जो आपको बताया, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस थ्री वाई, इन सब का कोई मतलब नहीं है. व्हाट इज अवर पॉइंट, कि एक्स प्लस फोर वाई हमें चाहिए था इज इक्वल्स टू 4500, राइट. सो ये पहला इक्वेशन मिला. अभी सेकंड इक्वेशन तो आप ऐसे चुटकी में लिख लोगे. आफ्टर 10 years हिज मंथली सैलरी बिकम 5400, लिख दो इक्वेशन. आफ्टर 10 years बोला है, तो इंक्रीमेंट को हमें क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हर साल उसे अगर इंक्रीमेंट मिल रहा है तो 10 साल बाद उसका इंक्रीमेंट कितना रहेगा, एक्स प्लस, सॉरी, एक्स इज फिक्स्ड, एक्स इज नॉट द इंक्रीमेंट, वाई इज द इंक्रीमेंट, एक्स प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 5400. अगर इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो, सो यू विल गेट एक्स, दैट इज संजय's फिक्स सैलरी, एंड वाई इज हिज, how much, y is what, y is what students, y is increment. Perfect. Okay. So ये था हिंट फिफ्थ वन के लिए कौन सा इक्वेशन है, या फिफ्थ वन. So similarly you can try sixth one as well, fifth, sixth, seventh one, the sum of two digits, okay, फिफ्थ और सिक्स्थ कर लो, 7, 8, 9, 10 वी विल टेक इन द क्लास. ओके, अगर आप करते हो दैट इज गुड, इफ नॉट विल टेक इट. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक that should be it for today. If you don't have any doubts, you can simply say bye bye to me and leave the class. The class is over, students. Bye bye, good night.